Hello students, welcome back to the English class. Today I'll continue the explanation of the lesson Silk Road by Nick Middleton. In this lesson, the writer has described his journey to Mount Kailash. He started his journey from a place called Rao one morning. Uh, a flawless white moon floated in the perfect blue sky. The edges of clouds looked like French lobes. The sun splashed the distant mountain peaks with a rose tinted blush. A lady named Lamo gave a long sleeved sheepskin coat to the narrator. Uh, these, uh, these coats were worn by all the men in that area. The rider traveled in a car which was driven by Satan. He was also accompanied by a man called Daniel. The driver took a shortcut towards Mount Kailash. It involved crossing several high mountain peaks. The shortcut took them across vast open plains which had nothing in them except a few gazelles who were eating dry pastures. After the dry pastures, plains, stony plains came. There they saw a herd of wild asses who were galloping. After the rocky plains, hills came into view. There they passed solitary Drogbas who were tending their flocks. Sometimes these Drogbas would pause and stare at them. Then they passed nomads' dark tents. Those tents were guarded by Tibetan mastiffs. Tibetan mastiffs were black, huge dogs. They were ferocious. These dogs were very popular in ancient China as hunting dogs. Now they, they could see snow-capped mountains at the on the horizon. They entered a valley where there was a wide river which was clogged with ice. Then the turn became sharper and the ride bumpier. At one point, they saw a strip of ice. It was spread for 15 meters. They put handfuls of dirt on the ice and slowly they crossed that icy patch. 10 minutes later, the car had to be stopped. They saw another blockage. This time, the driver tried to drive round the snow. The slope was steep and filled with major rocks. Somehow, the driver found a way uh, through them, and they continued to climb, and they reached at a height of 5,400 meters. There, the rider felt terrible headache. So now we will resume the explanation from here on page number 77. From we finally reached the top. This is the third paragraph. We finally reached the top of the pass
at 5,515 meters. आपको याद होगा कि ये लोग एक वैली से जा रहे थे। वैली में जो है, जब ये वैली में एक पास था, ठीक है, तो एक पास से ये लोग जा रहे थे, तो ये पास से जाते हुए ये अभी तक ये ऊपर की तरफ चढ़ रहे थे, ठीक है। और अब जो है वो लोग उस पास के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुके थे। ये पॉइंट जो है 5,515 मीटर्स की ऊंचाई पे था। इट वॉज मार्क्ड बाई अ लार्ज केन ऑफ रॉक्स। तो वहाँ पे जो है ना, जो हाईएस्ट पॉइंट था उस पास का, वहाँ पे एक केन ऑफ रॉक्स था। केन का मतलब होता है अ पाइल ऑफ स्टोन्स टू मार्क समथिंग, ठीक है। तो वहाँ पे जो है ये मैन मेड जो है पाइल होता है, पाइल ऑफ स्टोन्स वहाँ पे रखे थे, जो इस बात की निशानी थे कि ये हाईएस्ट पॉइंट है। इट वॉज मार्क्ड बाई ए लार्ज केन ऑफ रॉक्स फेस्टून्ड विद सिल्क स्कार्फ एंड रेगेड प्रेयर फ्लैग्स। तो ये जो केन ऑफ रॉक्स थे ना, ये लोग यहाँ पे क्या चीज़ें थी? फेस्टून इज़ अ वर्ब। फेस्टून मीन्स टू डेकोरेट समथिंग विद फेस्टून्स। और फेस्टून्स किसे कहते हैं? फेस्टून्स कहते हैं कि ये जैसे फ्लावर्स हैं या लीव्स हैं या रिबन्स हैं, इनकी एक चेन बना ली जाए और उस चेन से जो है ना किसी चीज़ को डेकोरेट कर दिया जाए, उसको कहते हैं फेस्टून्स, ठीक है। तो वहाँ पे जो है जो केन ऑफ रॉक्स थे उसको जो है ना फेस्टून से डेकोरेट किया गया था। और ये फेस्टून्स किस चीज़ के थे? फेस्टून विद वाइट सिल्क स्कार्फ। स्कार्फ जो है ना, स्कार्फ की का प्लूरल है, वो सिल्क क्लॉथ का ये स्कार्फ थे। और रेगेड प्रेयर फ्लैग्स, वहाँ पे कुछ प्रेयर फ्लैग्स थे जो कि फटे पुराने थे, रेगेड थे। उससे जो है ना ये केन ऑफ रॉक्स जो है उससे फेस्टून था, ये डेकोरेटेड था। तो द केन ऑफ रॉक्स was decorated with festoons of white silk scarves and ragged prayer flags. We all took a turn round the cairn in a clockwise direction as is the tradition. तो इन लोगों ने जो है ट्रेडिशन के मुताबिक जो है केन के चारों तरफ चक्कर लगाया। एंड सेटन चेक द टायर्स ऑन हिज व्हीकल। और वहीं पर सेटन ने जो है व्हीकल के टायर्स चेक किया। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक एंड पार्शली अनस्क्रूड द टॉप। उसने अपनी गाड़ी को एक पेट्रोल पंप पर स्टॉप किया और उसने जो है पेट्रोल टैंक को जो है ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक एंड पार्शली अनस्क्रूड द टॉप। तो वो एक पेट्रोल टैंक पर रुका और जो है उसने जो है ना पेट्रोल टैंक के टॉप को अनस्क्रू किया, उसको खोला। विच इमिटेड अ लाउड हिस। तो उसने जो पेट्रोल टैंक है उसको जब थोड़ा सा ढीला किया तो वहाँ से एक लाउड हिस की निकली। वहाँ से एक तरह की आवाज़ थी। हिस जो है ना एक तरह की साउंड होती है, वहाँ से हिस की एक साउंड निकली। द लोअर एटमॉस्फेयर प्रेशर वॉज अलाउिंग द फ्यूल टू एक्सपैंड। तो जो कि बाहर एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर था वो लो था। इट वॉज अलाउिंग द फ्यूल टू स्पेंड, ठीक है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर चूँकि लो था तो उसने जब पेट्रोल टैंक खोला तो जो फ्यूल था, अंदर जो फ्यूल था चूँकि एक्सपेंड होता है तो वो जो है एक्सपेंड होकर थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश करता है, उसी चीज़ की आवाज़ होती है एक्सपेंड। इट साउंडेड डेंजरस टू मी। तो जो है उसकी जो हिसिंग साउंड थे ना वो नरेटर को थोड़ी डेंजरस लगे। मैं भी सा सेटन लाफ्ड बट नो स्पोकिंग। तो सेटन ने कहा कि हाँ ये डेंजरस हो सकता है, उसने हंसते हुए कहा। और यह भी नरेटर को वार्न किया कि कोई स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर स्मोक करेंगे तो वहाँ पर आग लग सकती है। माई हेडेक सोन क्लियर एज वी करियर डाउन द अदर साइड ऑफ द पास। उसके बाद चूँकि ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुके थे पास के, तो उसके बाद इनको नीचे जाना था। तो करियर डाउन का मतलब होता है टू मूव डाउन, ओके।
कैरियर का मतलब होता है टू मूव क्विकली। तो इन्होंने क्या किया, दे करियर डाउन, उसके बाद इन्होंने दूसरी साइड पर ट्रैवल करना शुरू किया और क्विकली जो है ना ये नीचे जाना शुरू कर दिया। करियर डाउन द अदर साइड ऑफ द पास, इट वॉज 2 o'clock बाई द टाइम वी स्टॉप्ड फॉर लंच। उसके बाद वहाँ से तेज़ी से इन्होंने नीचे जाना शुरू किया, फिर लंच के लिए इनको स्टॉप करना था। उस वक्त 2 बज चुके थे। वी एट हॉट नूडल्स इनसाइड अ लॉन्ग कैनवस टेंट। वहाँ पे एक लॉन्ग कैनवस टेंट था, वहाँ पर इन्होंने हॉट नूडल्स खाए। पार्ट ऑफ अ वर्क कैंप इरेक्टेड बिसाइड अ ड्राई सॉल्ट लेक। ये जो कैनवस टेंट था ना, वहाँ पर एक वर्क कैंप था, उसका ये एक पार्ट था। और ये वर्क कैंप इरेक्टेड बिसाइड अ ड्राई सॉल्ट लेक, वहाँ पर जो है ना एक सॉल्ट लेक था, ठीक है। और ये वर्क कैंप जो है उसके साइड पे ये लोकेटेड था। और ये जो लॉन्ग कैंप है जहाँ पे इन्होंने नूडल्स खाए थे, ये वर्क कैंप का एक पार्ट था। द प्लेटो इज मार्क्ड विथ सॉल्ट फ्लैट्स एंड ब्रैकिश लेक्स। ये जो जगह थी ना ये प्लेटो था, आपने ज्योग्राफी में प्लेटो पढ़ा होगा। प्लेटो जो है ना ये एक हाई और फ्लैट लैंड होता है, ठीक है। माउंटेन जैसे होता है, तो माउंटेन चूँकि वो फ्लैट नहीं होता है, लेकिन ये प्लेटो जो है ये हाई लैंड होता है लेकिन फ्लैट होता है। तो द प्लेटो इज़ पॉक मार्क्ड। पॉक मार्क का मतलब होता है ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ मार्क्स हों या होल्स हों। अ प्लेस विच इज़ मार्क्ड विथ अ प्लेस विच हैज़ मार्क्स और होल्स। तो ये जो जगह थी प्लेटो, ये जो प्लेटो था वो वहाँ पे वो किस चीज़ से पॉक मार्क था, विथ सॉल्ट फ्लैट्स एंड ब्रैकिश लेक्स। वहाँ पे सॉल्ट फ्लैट्स थे। जब सॉल्ट फ्लैट्स का मतलब क्या होता है, एन एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विथ सॉल्ट। वहाँ पर वो जो एक एरिया ऑफ लैंड था वहाँ पे इट वाज कवर्ड विथ सॉल्ट एंड ब्रैकिश लेक्स। और वहाँ पर जो है ब्रैकिश लेक्स थे। ब्रैकिश का मीन्स सॉल्टी, वहाँ पे खारे पानी की लेक्स थी और सॉल्ट फ्लैट्स थे, यानी वहाँ पे नमक की पपड़ी जमा हुई थी वहाँ पे, ठीक है। और वेस्टिजेस ऑफ द टेथिस ओशन विच बॉर्डर तिब्बत बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कलिशन। अच्छा, ये जो सॉल्ट फ्लैट्स थे और ये ब्रैकिश लेक्स थे, ये क्या थे, वेस्टिजेस थे। वेस्टिजेस मीन्स ट्रेसेस या निशानियाँ थे, या ठीक है। किस चीज़ के ट्रेसेस थे ये, वेस्टिजेस ऑफ द टेथिस ओशन। ये टेथिस ओशन के ट्रेसेस थे। टेथिस ओशन जो है ये ज्योग्राफी में इसका ये मेंशन किया जाता है। ये क्या चीज़ है, टेथिस ओशन विच बॉर्डर तिब्बत बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कलिशन दैट लिफ्टेड इट स्काईवर्ड। तो क्या हुआ था कि ये जो तिब्बत है ना, यहाँ पे इस एरिया में एक ओशन था, उसका नाम था टेथिस ओशन। काफ़ी पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो जो है वहाँ पे एक टेथिस नाम का एक ओशन था। और क्या हुआ था कि जो अंटार्कटिका है ना, ये एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था। ये इसमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी इसी में शामिल था। और ये साउथ से नॉर्थ की तरफ ये ड्रिफ्ट हुए थे और आकर के ये तिब्बत से टकराए थे। तो वहाँ पे जो हिमालय पहाड़ जो बन गया उसी वजह से बन गया कि जो साउथ से जो लैंड मास था वो तिब्बत के एरिया से आके टकराया, वहाँ पे टेथिस ओशन था और वो हिस्सा जो है ना पूरा ऊपर चढ़ गया। तो फिर तो ये समझ करके इस लाइन को फिर पढ़ता हूँ मैं। वेस्टिजेस ऑफ द टेथिस ओशन विच बॉर्डर तिब्बत बिफोर द ग्रेट कॉन्टिनेंटल कलिशन दैट लिफ्टेड इट अप स्काईवर्ड। तो जो ग्रेट कॉन्टिनेंटल कलिशन था, 2 कॉन्टिनेंट्स आपस में मिले थे, तो इसकी वजह से ना ये ऊपर की तरफ उठ गया था। दिस वन, और इसी वजह से वहाँ पे जो है सॉल्ट के फ्लैट्स थे, यानी सॉल्ट वहाँ पे जमा हुआ था, और ब्रैकिश लेक थे, वहाँ पे खारे पानी की लेक्स भी थे। ओके, दिस वन वॉज अ हाइव ऑफ एक्टिविटी, men with pickaxes and shovels trudging back and forth in their long sheepskin coats
एंड सॉल्ट इंक्रस्टेड बोट्स। तो वहाँ पे जो है ना काफ़ी एक्टिविटी थे। दिस वॉज अ हाइव ऑफ एक्टिविटी, हाइव मीन्स सेंटर। ये जगह जो थी इट वॉज अ हाइव ऑफ एक्टिविटी, सेंटर ऑफ एक्टिविटी, मैन विथ पिकैक्सेस एंड शॉवेल्स। पिकैक्स का मतलब होता है जो खुदाई करने वाली जो कुदाली होती है। वहाँ पे कुछ मजदूर थे, लेबरर्स थे, वो अपने पिकैक्सेस लिए हुए थे और शॉवेल्स लिए हुए थे, ठीक है। और ट्रजिंग बैक एंड फोर्थ इन देयर लॉन्ग शीप स्किन कोट्स, वो शीप स्किन कोट्स पहने हुए थे और वो जो है ना आगे पीछे कुछ लोग आगे जा रहे थे, कुछ लोग वापस आ रहे थे। ट्रज का मतलब होता है वॉक स्लोली या वॉक विथ हैवी स्टेप्स। तो उसमें कुछ मजदूर जो है एक तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे थे आगे, और कुछ लोग वापस होते हुए दिखाई दे रहे थे, ठीक है। और वो सारे लोग जो है शीप स्किन कोट्स पहने हुए थे। एंड सॉल्ट इनक्रस्टेड बूट्स, और वो बूट्स पहने थे जिनके ऊपर जो है सॉल्ट की पपड़ी जमा थी या सॉल्ट का क्रस्ट जमा हुआ था। ऑल वोर सन ग्लासेस अगेंस्ट द ग्लेयर एज द स्टेडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक्स इमर्स्ड फ्रॉम द ब्लाइंडिंगली वाइट लेक लेडन विद पाइल्स ऑफ सॉल्ट। तो वहाँ पे क्या था, क्योंकि वहाँ पे सॉल्ट बहुत ज़्यादा था, इसलिए वहाँ से जो है ट्रकों में भर करके जो है ना सॉल्ट को ले जाया जाता था। तो एक ट्रकों की एक लॉन्ग लाइन होती थी और ट्रकों की लाइट जो थी वह ग्लेयर मीन्स ब्राइट लाइट। वहाँ पे ट्रकों की लाइट जो बहुत ही ब्राइट थी, ग्लेयर थी, ठीक है। और वो अच्छा देखें, दोबारा मैं पढ़ता हूँ। ऑल वोर सन ग्लासेस, तो ये लोग जो है ना जो मजदूर थे वो सन ग्लासेस पहने हुए थे। किस लिए सन ग्लासेस पहने हुए थे? अगेंस्ट द ग्लेयर, जो ट्रकों की जो लाइट आ रही थी, तेज़ लाइट, उससे बचने के लिए वो सन ग्लासेस पहने हुए थे। सन ग्लासेस अगेंस्ट द ग्लेयर एज स्टेडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक्स। वहाँ से जो है ना ब्लू ट्रक्स की जो है स्टेडी स्ट्रीम आ रहे हैं। स्टेडी मीन्स कंटिन्यूस लाइन, एक लगातार ट्रक्स आए जा रहे थे वहाँ से। ब्लू ट्रक्स इमर्ज फ्रॉम द ब्लाइंडिंगली वाइट लेक लेडन विद पाइल्स ऑफ सॉल्ट। वहाँ पे जो वाइट लेक थी जिसके अंदर जो है सॉल्ट थे, पाइल्स ऑफ सॉल्ट थे। एक लेक थी, उसके अंदर पाइल्स ऑफ सॉल्ट थे और वो काफ़ी ब्लाइंडिंगली, मतलब वो जो वाइट कलर की जो सॉल्ट थी ना, उससे जब सूरज की रोशनी पड़ती थी काफ़ी ऐसा लग रहा था ये चौंधिया देने वाला, ब्लाइंडिंगली भी चौंधिया देने वाला जो है वहाँ पे वाइट लेक थे। और वहाँ से जो है ट्रक गुजर रहे थे, ठीक है। उसके ऊपर जो है उससे ट्रकों से रोशनी आ रही थी और रोशनी जो है उससे बचने के लिए ये मजदूर एक सन ग्लासेस पहने हुए थे। बाई लेट आफ्टरनून वी हैड रीच्ड द स्मॉल टाउन ऑफ होर। तो लेट आफ्टरनून तक जो है वो लोग वहाँ पे एक स्मॉल टाउन होर था, वहाँ पहुँचे ये लोग देर दोपहर तक। और ये दो बजे तो ये यहाँ पे पहुँचे थे, इससे पहले जो बताया इन्होंने। और उसके बाद जो है यहाँ पे उन्होंने एक कैनवस टेंट में खाना खाया और खाना खाने के बाद फिर इन्होंने जर्नी स्टार्ट की। तो देर दोपहर बाद जो है ये पहुँच गए एक टाउन होर में। बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे, तो जो मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे था दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लासा टू कश्मीर। ये जो एक ट्रेड रूट था लासा से जो कश्मीर जाता था, तो वो उस ईस्ट वेस्ट हाईवे पर वापस आ गए। डेनियल हु वॉज रिटर्निंग टू लासा फाउंड अ राइड इन अ ट्रक। ओके, ये डेनियल जो था उसको जो है ना वो इनके साथ माउंट कैलाश तक नहीं जाना था, उसको जाना था लासा, ठीक है। तो जब उस रोड पर आए जो लासा की तरफ जा रही थी, तो वहाँ पर डेनियल को एक ट्रक मिल गया और वो उस ट्रक से जो है उस ट्रक में उसको राइड मिल गई और वो लासा चला गया। फाउंड अ राइड इन अ ट्रक, सो सेटन एंड आई बेड हिम फेयरवेल आउटसाइड अ टायर रिपेयर शॉप। तो एक टायर रिपेयर शॉप था, वहाँ पर ड्राइवर सेटन ने और राइटर ने डेनियल को गुड बाय कहा। वी हैड सफर्ड 2 पंक्चर्स इन क्विक सक्सेशन। तो जो टायर्स थे ना, इससे पहले जो है
जो है इससे पहले जो ये जर्नी थी इनकी, उस जर्नी के दौरान इनके टायर्स को में पंक्चर हो गया था. दे हैड सफर्ड punctures in quick succession. Quick succession means at short interval. तो एक के बाद जो है जल्दी जल्दी उनके टायर जो है ना पंक्चर हो गए थे. और ऑन द ड्राइव डाउन फ्रॉम द सॉल्ट लेक, और जो सॉल्ट लेक से जो जब ये नीचे आए, नीचे आने के वक्त जो है ना इनको टायर जो है ना कुछ क्विक सक्सेशन में पंक्चर हो गए थे. एंड सेटन वॉज ईगर टू हैव देम फिक्स्ड, और सेटन जो है इस बात के लिए ईगर था कि उन पंक्चर्ड टायर्स को जो है फिक्स करवा दिया जाए. सिंस दे लेफ्ट हिम विद नो स्पेयर, क्योंकि इसके बाद जो है ना कोई स्पेयर टायर उनके पास बाकी नहीं बचे थे. ठीक है, क्योंकि स्पेयर्स उनके पास थे नहीं. अगर दूसरे जो कि इसके पहले जब ये पंक्चर हुए थे तो उन्होंने जो स्पेयर टायर थे उससे उन्होंने चेंज कर दिया था. अब दूसरे स्पेयर टायर्स उनके पास नहीं थे कि अगर फिर पंक्चर हो जाता है तो उसको बदल नहीं सकते थे. बिसाइड्स द सेकेंड टायर he changed had been replaced by one that was as smooth as my bald head. तो राइटर ने थोड़ी फनी लैंग्वेज उसकी है. उसने कहा कि इससे पहले जो टायर पंक्चर हुए थे उसमें जो दूसरा टायर था, द सेकेंड टायर ही had changed, जो दूसरा टायर इसने चेंज किया था, हैड बीन रिप्लेस बाई वन, उसको एक ऐसे टायर से रिप्लेस किया गया था जो कि काफ़ी स्मूथ था. और उसने उस टायर की स्मूथनेस को जो है अपने बॉल्ड हेड से कंपेयर किया. उसका जो बॉल्ड हेड है, यानी उसका जो गंजा सर है, वो जितना चिकना है उतना ही चिकना जो है वो टायर था, दूसरा टायर जो उसने रिप्लेस किया था. मतलब कहने का कि ये जो स्मूथ टायर्स होते हैं ना वो काफ़ी डेंजरस होते हैं. अगर गाड़ी में स्मूथ टायर है तो एक्सीडेंट होने का ज़्यादा चांस रहता है. होर वॉज अ ग्रिम मिजरेबल प्लेस. ये जो होर टाउन जहाँ ये पहुँचे थे वो एक ग्रिम था. ग्रिम मीन्स डल एंड मिजरेबल प्लेस. मिजरेबल मीन्स अनप्लेजेंट. तो बहुत ही डल और अनप्लेजेंट प्लेस था होर. देयर वॉज नो वेजिटेशन व्हाट्सएवर. वहाँ पे किसी तरह की कोई वेजिटेशन नहीं थी, वहाँ पे कोई प्लांट्स नहीं थे. ओके, जस्ट डस्ट एंड रॉक्स. वहाँ पे सिर्फ डस्ट थे और रॉक्स थे, कोई वेजिटेशन नहीं था. इसलिए राइटर को वो जगह जो है ना बहुत ही ग्रीन और मिजरेबल लगी. लिबरली स्कैटर्ड विद ईयर्स ऑफ अक्यूमुलेटेड रिफ्यूज. वहाँ पे जो है वो क्यों इसको बहुत ख़राब जगह लगी, क्योंकि वहाँ पर सालों से जमा जो है ना वहाँ पे अक्यूमुलेटेड रिफ्यूज़ थे. अक्यूमुलेटेड मीन्स जमा हुए, और रिफ्यूज़ का मतलब वेस्ट. वहाँ पे काफ़ी वेस्ट मटेरियल वहाँ पे जमा हुआ था, और वहाँ पे कोई वेजिटेशन भी नहीं था, और वो जगह वहाँ पे सिर्फ डस्ट और रॉक्स थे. एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल which had accumulated over the years, or which was unfortunate given that the town sat on the shore of Lake Mansarovar. तो राइटर कहता है कि चूँकि वहाँ पे ये जगह इतनी अच्छी नहीं थी, और जो है वहाँ पे सिर्फ डस्ट और रॉक्स थे, कोई वेजिटेशन नहीं थी, और इतना ज़्यादा वहाँ पे जो वेस्ट मटीरियल पड़ा हुआ था, इसकी वजह से राइटर कहता है कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि ये जगह जो है ना लेक मानसरोवर के शोर पे थे. द टाउन सेट ऑन द शोर ऑफ लेक मानसरोवर. लेक मानसरोवर के शोर पे थे, और तिब्बत्स मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर. वेनरेटेड मीन्स रेस्पेक्टेड. ये जो लेक मानसरोवर है ना वो तिब्बत का सबसे रेस्पेक्टेड, सबसे वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर है. स्ट्रेच ऑफ वाटर मीन्स स्ट्रेच मीन्स फैलाव. कोई चीज़ जो फैली हुई हो उसको स्ट्रेच कह सकते हैं. तो ये जो है राइटर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी होर टाउन की, कि वहाँ पे जो वो जगह जो है काफ़ी गंदी थी. क्यों इसलिए भी अच्छी नहीं लगी कि ये लेक मानसरोवर के शोर पे थी, जिसको बहुत ही रिस्पेक्टेड माना जाता है.
एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी जो है ये साइंटिफिक स्टडी ऑफ द यूनिवर्स को कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो जो एंशियंट हिंदू एंड बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी जो है पिन पॉइंट्स मानसरोवर एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स। तो एंशियंट और हिंदू जो कॉस्मोलॉजी हैं उसमें जो है जो मानसरोवर को पिन पॉइंट किया जाता है। पिन पॉइंट मीन्स टू टेल समथिंग एग्जैक्टली कि यहीं पे ये चीज़ है। तो वहाँ पे उनकी जो कॉस्मोलॉजी है उसके मुताबिक जो है मानसरोवर जो है वो एज द सोर्स ऑफ 4 ग्रेटेस्ट इंडियन रिवर्स। उसमें यह कहा गया है कि मानसरोवर जो है वो 4 ग्रेट इंडियन रिवर्स का जो है वो सोर्स है, यानी वहीं से लेक मानसरोवर से ये चारों नदियाँ निकलती हैं। द इंडस, द गंगीस, द सतलज एंड द ब्रह्मपुत्र, ये 4 नदियाँ। इंडस मीन्स सिंध, गंगीस मीन्स गंगा, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र। इंडस, गंगीस, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र। So the Lake Mansarovar is considered according to Hindu and Buddhist mythology. Lake Mansarovar is considered as the source of 4 great rivers: the Indus, the Ganges, the Satluj and Brahmaputra. Actually only the Satluj flows from the lake, but the writer tells us that actually in reality only Satluj flows from the lake, but the headwaters of the others all rise nearby on the flanks of Mount Kailash. हेडवाटर्स मीन्स सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी जहाँ से कोई नदी वगैरह निकलती है, ठीक है। तो सतलज जो है वो लेक मानसरोवर से निकलती है, लेकिन जो तीनों और जो नदियाँ हैं ये सतलज के अलावा इंडस, गंगीस और ब्रह्मपुत्र, इनका जो हेड वाटर्स है, हेड वाटर मीन्स प्लेस ऑफ ओरिजिन, इनका जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वो है द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश। ये माउंट कैलाश के फ्लैंक्स हैं। फ्लैंक्स मीन्स साइड्स। माउंट कैलाश के जो है साइड से ये तीनों नदियाँ निकलते हैं। तो लेक मानसरोवर एक अलग चीज़ है और माउंट कैलाश एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो लेक मानसरोवर से जो है सतलज नदी निकलती है एंड द अदर 3 रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश। We were within striking distance of the great mountain and I was eager to forge ahead। यानी यहाँ से जो है अब वो लोग माउंट कैलाश के स्ट्राइकिंग रेंज में थे, स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में थे। स्ट्राइकिंग डिस्टेंस मीन्स वेरी क्लोज, वहाँ से काफ़ी क्लोज थे। ग्रेट माउंटेन मीन्स माउंट कैलाश से काफ़ी क्लोज थे। एंड आई वॉज ईगर टू फोर्ज अहेड, क्योंकि वो माउंट कैलाश से काफ़ी करीब आ चुके थे और ये नरेटर जो है इसीलिए उसको वो और थोड़ा ईगर हो गया था कि वहाँ पे आगे बढ़ा जाए वहाँ से। टू फोर्ज अहेड मीन्स टू गो अहेड। ओके, so my students, today only up to here. We'll continue tomorrow. Thank you very much.